Good evening, students. In this video, we are going to discuss about the topic a weekly tribal market in Dharoi village, Bastar, Chhattisgarh. We are talking about the place Bastar, which is located in Dharoi village, Chhattisgarh. So, in Dharoi village in Bastar, it's a home of Gonds and Adivasi groups, mostly which community lives here? Gonds. And they and at the weekly market one can find local people including tribals, non-tribals as well as outsiders, mainly Hindu traders of various castes. So we will study in it how tribals and non-tribals come to the weekly markets for to the fulfillment of their requirements, and there are the Hindus are their traders, and tribals and non-tribals were the purchasers. But some tribals were also the were also the sellers, as forest officials come to the market to conduct business with Adivasis who work for the forest department. Clear? So market attracts a variety of specialists selling their goods and services. The major goods that are exchanged in the market are manufactured good, that is jewelry, trinkets, pots and so on. So non-local foods such as salt, haldi, local food and agriculture items, and manufactured items such as bamboo, basket and forest produce are also found here. Clear? So now I am going to start the reading of this chapter. So now I am going to start the reading of this chapter. In most agrarian or peasant societies around the world, periodic markets are a central feature of social economic organization. Weekly markets bring together people from surrounding villages who come to sell their agriculture or other produce and to buy manufactured goods and other items that are not available in their villages. तो जो वीकली मार्केट्स होती थी बेटा, वो किस लिए लगती थी? ताकि वो वहाँ के जो विलेजर्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ पर उस सराउंडिंग के जो लोग हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो सकें और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें, और जो उन्होंने अपने फॉरेस्ट में मैन्युफैक्चर किया है उसे सेल कर सकें. Clear? They attract traders from outside the local area, as well as moneylenders, entertainers, astrologers and a host of other specialists offering their services and wares. In rural India, there are also specialized markets that take place at less frequent intervals. For instance, cattle markets. These periodic markets link different regional and local economies together and link them to the wider national economy and to towns and metropolitan centers. तो ये जो वीकली मार्केट्स थी वो आपस में एक दूसरे को मार्केट्स के साथ लिंकअप करती थी. क्लियर? The weekly hut is a common sight in rural and even urban India. In hilly and forested areas, especially those inhabited by Adivasis, where settlements are far-flung, roads and communications poor and the economy relatively undeveloped, the weekly market is the major institution for the exchange of goods as well as for social intercourse. तो यहाँ पर देखो, आप ये पिक्चर देख रहे हो, एक इसमें वीकली मार्केट लगी हुई है. तो इसमें यहाँ पर इनको सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल होती थी जो भी इनकी ज़रूरत की होती थी. ठीक है, जैसे कि ज्वेलरी होगी, कॉस्मेटिक्स होगी, या घर की जो भी उनको खाने की आइटम्स थी, जो उनकी यूज़ की आइटम्स थी, वो सारी चीज़ें उनको इस वीकली मार्केट में मिलती थी. और सिर्फ़ एक यही नहीं था कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, वहाँ पर वो अपने फ्रेंड सर्कल से भी मिलते थे, और जो वो अपने वहाँ पर फॉरेस्ट में मैन्युफैक्चर करते थे उन चीज़ों को भी वो वहाँ पर आकर सेल करते थे. ठीक है. सो लोकल पीपल कम टू द मार्केट टू सेल देयर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू ट्रेडर्स who carry it to the towns for resale, and they buy essentials such as salt and agriculture implements and consumption items such as bangles and jewelry. But for many visitors, the primary reason to come to the market is social, to meet kin, to arrange marriages, exchange gossip and so on. ठीक है. तो इसमें अब क्या पता चला कि बहुत सारे जो थे वो वहाँ पर
क्यों आते थे? क्योंकि उनको मैरिजेस अरेंज करनी होती थी, जो मैरिज के पर्पस जिनके शादी होती थी उसका सामान खरीदने के लिए, या जो भी और उनके गेट टुगेदर्स पार्टीज़ होती थी उसकी सामान लेने के लिए, या अपने रिश्तेदारों से फ्रेंड्स से मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ गॉसिप एक्सचेंज करने के लिए। क्लियर? और वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो भी आते थे ट्रेडिंग करने के लिए, और जो ये ट्राइबल्स अपने फॉरेस्ट में मैन्युफैक्चर करते थे उन चीज़ों को वो ले जाकर आगे सिटीज़ में सेल करते थे, और उससे जो पैसा इन लोगों को मिलता था उससे ये अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। क्लियर? So while the weekly market in tribal areas may be very old institution, its character has changed over time. After these remote areas were brought under the control of the colonial state, they were gradually incorporated into the wider regional and national इकोनॉमीज़। तो अब क्या हुआ बेटा, जब कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ओवरटेक कर लिया था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर। मोस्टली ट्राइबल्स जो हैं वो उसी एरिया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही ज़्यादातर रहते थे। ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या करने लग गए थे? टी प्लांटेशन करने लग गए थे। तो टी प्लांटेशन करने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट्स को कट करना स्टार्ट कर दिया था। एक तो वो टी प्लांटेशन कर रहे थे, दूसरा वहाँ से रेलवे ट्रैक्स निकाल रहे थे ताकि जो चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं वो वहाँ से आगे एक्सपोर्ट कर सकें। क्लियर? तो वो क्या उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो एरिया को पूरा वेकेंट करवा लिया, ट्राइबल्स को वहाँ से मूव कर दिया, उनको वहाँ से दूसरी जगह प्लेन एरियाज़ में वो लोग शिफ्ट हो गए ट्राइबल्स। सो ट्राइबल area were opened up by building roads and pacifying the local people, many of whom resisted colonial rule through their so-called tribal rebellions, so that the rich forest and mineral resources of these areas could be exploited. क्लियर? तो वो जो वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स थे वो सारे प्लेन एरियाज़ में मूव कर गए, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ओवरटेक कर लिया और वो वहाँ से रेलवे ट्रैक्स जो थे वो बनाने लग गए और वहाँ की चीज़ें मैन्युफैक्चर करके बाहर उनके साथ ट्रेडिंग करने लग गए अदर कंट्रीज़ में। ठीक है, the local tribal economy was transformed as forest produce was sold to outsiders and money and new kinds of goods entered the system. इंडस्ट्रियल सिस्टम तब से स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट प्रोडक्शन था वो फिनिश होने लग गया और जो फॉरेस्ट की जो चीज़ें थी वो अपने लोगों को नहीं बल्कि आउटसाइडर्स को मिलती थी। सो ट्राइबल्स वर ऑल्सो रिक्रूटेड एज लेबरर्स टू वर्क ऑन प्लांटेशंस एंड माइंस दैट वर एस्टैब्लिश्ड अंडर कॉलोनियलिज्म। तो जो ट्राइबल्स वहाँ पर रह गए थे वो वहाँ पर टी प्लांटेशन के लिए काम किया करते थे एज लेबरर्स और वर्कर्स। और इसी तरह से अगर वो नहीं वहाँ पर थे तो लेबर और वर्कर कहाँ से आती थी? यूपी बिहार साइड से। अ मार्केट फॉर ट्राइबल लेबर डेवलप ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो कॉलोनियल पीरियड में ही ये ट्राइबल्स के लिए वीकली मार्केट जो थी ये डेवलप की गई। ड्यू टू ऑल दीज चेंजेस लोकल ट्राइबल इकोनॉमीज बिकेम लिंक्ड इनटू वाइडर मार्केट्स। सो इन्हीं सारी चेंजेस के कारण जो लोकल ट्राइबल इकोनॉमीज थी वो वाइडर मार्केट्स के साथ लिंक अप हो गई, यूजुअली विद वेरी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर लोकल पीपल। और लोकल पीपल के लिए बहुत बैड कॉन्सिक्वेंसेस थी। क्यों? क्योंकि वो लोग पुअर होते जा रहे थे, पॉवर्टी को फेस कर रहे थे। ठीक है, अब वो जहाँ पर उनकी अपनी ज़मीन थी, अपना वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे थे? उनके ब्रिटिशर्स के अंडर एज लेबरर्स काम कर रहे थे, उनकी ज़मीनें उन्होंने सब ले ली थी। फॉर एग्जाम्पल द एंट्री ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स फ्रॉम आउटसाइड द लोकल एरिया लेड टू द एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या होता है? कि जो आपको पॉवर्टी की तरफ लेके जाता है। एम्पावरमेंट ऑफ आदिवासीज, मैनी ऑफ होम लॉस्ट देयर लैंड टू आउटसाइडर्स। तो बाहर वालों ने बहुत ज़्यादा उनके लैंड्स जो थे वो ओवरटेक कर लिए थे। क्लियर? द वीकली market as a social institution, the links between the local tribal economy and the outside and the exploitative economic relationship between Adivasis and others are illustrated by a study of weekly market in Bastard district. The district is populated mainly by Gonds and Adivasis. ठीक है, तो ये किससे मेनली वहाँ पर क्या पॉपुलेशन थी? गॉन्ड्स, आदिवासीज।
At the weekly market, you find local people, including tribals and non-tribals, mostly Hindus, as well as outsiders, mainly Hindu traders of various castes. ठीक है, तो वहाँ पर जो ट्रेडर्स होते थे वो कौन थे? हिंदू ट्रेडर्स थे, अलग अलग कास्ट्स के, जो वहाँ पर सामान बेचने के लिए आते थे. Forest officials also come to the market to conduct business with Adivasis who work for the forest department, and the market attracts a variety of specialists selling their goods and services. The major goods that are exchanged in the market are manufactured goods. देखो कौन से goods थे जो वहाँ पर exchange होते थे? Jewelry, trinkets, pots, knives, non-local foods such as salt, haldi, local food, agriculture produce and manufactured items. ये सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ पर एक दूसरे से exchange होती थी. The forest produce that is brought by the आदिवासीज इज़ परचेज्ड बाय ट्रेडर्स हु कैरी इट टू टाउन्स. जो आदिवासीज अपनी फॉरेस्ट में मैन्युफैक्चर करते थे, ग्रो करते थे, वो सारे ट्रेडर्स ले जाते थे टाउन्स में सेल करने के लिए. तो इन द मार्केट द बायर्स आर मोस्टली आदिवासीज. बायर्स कौन थे? आदिवासीज. वाइल द सेलर्स आर मेनली कास्ट हिंदूज. और सेल कौन करते थे? हिंदूज. Adivasis earn cash from the sale of forest and agriculture produce and from wage labor, which they spend in the market mainly on low value trinkets and jewelry and consumption items such as manufactured cloth. तो मेनली ये कहाँ से इनके पास पैसा आता था? आदिवासी के पास, जो उनके अंडर वेज लेबर, दिहाड़ियों पर वर्कर के उसमें काम करते थे, या फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपना जो मैन्युफैक्चर करते थे, फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस करते थे वो वहाँ पर सेल करते थे, उनको देते थे. तो उस मनी से वो इस वीकली मार्केट से चीज़ें खरीदते थे, जैसे कि ट्रिंकेट्स, ज्वेलरी एंड कंजम्पशन. क्लियर? So, according to Alfred Gell, the anthropologist who studied Dharai, the market has significant much beyond its economic functions. For example, the layout of the market symbolizes the hierarchical intergroup social relationships in this region. Different social groups are located according to their position in the caste and social hierarchy, as well as in the market system. The wealthy, the high-ranking Rajput jeweler and the middle-ranking local Hindu traders sit in the central zones, and the tribal sellers of vegetables and local wares in the आउटर सर्कल्स. तो जो ये ज्वेलर और मिडल रैंकर्स होते थे, लोकल हिंदू ट्रेडर्स, वो कहाँ पर बैठते थे? सेंट्रल जोन्स में. ठीक है. और बाकी ये जो ट्राइबल होते थे, ये आउट सर्कल्स में इनको बिठा दिया जाता था. द क्वालिटी ऑफ सोशल रिलेशंस इज एक्सप्रेस्ड इन द काइंड्स ऑफ गुड्स दैट आर ब्रॉट एंड सोल्ड एंड द वे इन विच ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड आउट. तो जो उनके सोशल रिलेशंस थे वो सिर्फ सेल परचेज के थे. Clear? So, for instance, interaction between tribal and non-tribal traders are very different than those between Hindus of the same community. They express hierarchy and social distance rather than social equality. तो Hindus और ये जो non-tribal और जो tribal थे, उनमें social distance रहता था, ना कि social equality. क्लियर? और उनमें सिर्फ एक ये ट्रेडिंग का ही रिलेशनशिप था, इसके अलावा और कोई भी रिलेशनशिप ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स कम्युनिटी में नहीं था. क्लियर? सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.